welcome all the devotees. So let us start with prayers. Namo Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Kathanchan smrite yasmin duskaram sukaram bhavet Vismrite viparitam syat Shri Chaitanya namamitam Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Sarva Upanishado Gao Dugdha Gopala Nandano Parthavatsa Sudhir Bhokta Dugdham Gitamritam Mahat Ekam Shastram Devaki Putra Gitam Eko Deva Devaki Putra Eva Eko Mantra Tasya Namani Yani Karmapi Ekam Tasya Devasya Seva Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Krishna Balaram ki jai Shri Nitai Gaurang ki jai Srila Prabhupada ki jai Nitai Gaur Premanande Hari Hare Krishna. Welcome all the devotees and wish you all a very happy Nirzala Ekadashi. And I hope all of you are observing Nirzala Ekadashi and you have not taken water yet. So how many of you are observing Nirzala Ekadashi yet? Successfully you have observed. Kindly raise your hands. Daksha Bansal, Piyush, Radha, Payal, Ratindra, RK. Very nice. So many, so nice to see all of you. So और बाकी लोग आदित्य आप निर्जला नहीं है? नहीं प्रभु, पानी पी लिया। पानी पी लिए, बाकी तो कुछ नहीं खाए ना? नहीं प्रभु, कुछ नहीं खाया। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने लोग पानी पीकर केवल आज की एकादशी कर रहे हैं? हाथ खड़ा करिए। पानी, बाकी ये लोग नीचे कर लीजिए, बाकी लोग हाथ खड़ा करिए जो पानी केवल पीकर एकादशी कर रहे हैं। जो निर्जल है वो नीचे कर लीजिए हाथ, जो पानी पीकर एकादशी कर रहे हैं वो काइंडली रेज योर हैंड्स। सो आरके ठाकुर, आरके ठाकुर आप कौन हो यार? ये आरके मतलब क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड। हु आर यू? हिमांशु आप भी पानी पे हो? यू आर ऑब्जर्विंग बाय टेकिंग वाटर। चलो बहुत अच्छा। आदित्य नारायण, क्षितेश शर्मा, वेरी गुड। So I'm so happy that all of you are trying to follow what I suggested you all yesterday. Very good. So those who are observing by drinking water, they're also very nice. Good. It's not that you are lower or inferior. It is our dedication and commitment which is shown by our vrata. When we follow vrat, vrat means commitment. So Ekadashi vrat means will not take grains. So that is the understanding of Ekadashi. And especially this Nirzal Ekadashi is there to give you the result of all other Ekadashis, which we do twice in a month. So if we observe a Nirzala Ekadashi, then we get the result of all the other Ekadashi. But that does not mean that we should not observe other Ekadashis. As I said, you know, all Chaitanya Mahaprabhu only requested one thing from his mother. Chaitanya Mahaprabhu would have requested his mother many things, but he requested one thing from his mother, that, oh my dear mother, please observe Ekadashi. That only one request. So Chaitanya Mahaprabhu requested from his mother to observe only Ekadashi Vrata,
And then Sachi Mata very happily accepted the request, and she started observing Ekadashi. So this is the desire of Chaitanya Mahaprabhu. So how much importance Chaitanya Mahaprabhu gives to Ekadashi, observing Ekadashi, right? Therefore, he would have asked many things, but he asked only to observe Ekadashi. So we should all try to observe Ekadashi, all the Ekadashi, whatever. आप पानी पी के, in our temple there are many devotees, they observe all Ekadasi Nirzal, means they don't take water on all the Ekadashis. There are many devotees. And those who observe today Ekadasi, you would have realized that how by chanting Hare Krishna continuously, you can always feel energized. You don't feel energy going down. And very easily you can observe Ekadasi. So by this, when we observe Ekadashi, then we can see that actually there is a lot of potency, spiritual energy is there in chanting Hare Krishna, and we can realize that. So today in our temple, many devotees, they chanted more than 100 rounds. So आप में से कितने लोग, they all of you kindly raise your hand, how many of you chanted 16 rounds? First I'll ask 16. Purvika, Raghav, Kshitiz, Daksh, Piyush, Aditya, Payal, Ankur, Daksh, RK, Sucheta. So many of you have chanted 16 rounds. Very nice. And what about the others? Aditya, अभी आपका chanting 16 नहीं हुआ? अमित, अंकुर, आशीष, भव्य, आप लोगों का भी 16 राउंड नहीं हुआ क्या? तो सब लोग आज ट्राई करें क्लास के बाद 16 राउंड करने की. कितने लोगों ने 32 राउंड्स किए हैं? हाथ खड़ा करिए. 32 राउंड्स. राघव, दक्ष, आर के, भव्य. वेरी गुड. आशीष बोल रहे हैं रात को हो जाएगा प्रभु, तो बाकी लोग भी रात तक कर लीजिए. चलो, कितने लोग 50 राउंड्स, सब लोग नीचे कर लीजिए अपना हाथ. कितने लोग 50 राउंड्स चैंट किए? 50. दक्ष 50 राउंड्स. और 100 राउंड्स कितने लोगों ने चैंट कर लिया? 100 राउंड्स किसी ने नहीं? चलो, तो sometimes you can try chanting 108 rounds. Today in our folk hostel, many students are trying to chant 108 rounds. They have already chanted I think 100 rounds. So 1 hour before we were discussing, so they are saying 90 rounds are done. So till now they would have chanted 100 rounds. So it is very nice when we chant especially on Ekadasi, without taking even water, or just take water and you chant, you feel tremendous energy. You won't feel, thirsty, or you won't feel hungry, and you will not feel that you are feeling loss of energy. There is no energy in the body. You'll be very active. So by this, you can realize the power of chanting Hare Krishna. So this is my request to all. So from today onwards, all of you please start chanting nicely, attentively, because chanting do gives energy, spiritual energy, and it can drive your body, spirit, soul, everything. So please take chanting very nicely, seriously, and start following all the Ekadasis from today onwards. Now, whatever Ekadashi comes, please do follow. And all other Ekadasi, you don't need to observe Nirzal. You can take water or grains, fruits, but you should not take grains, that's all. All other Ekadashis are very simple to follow, except today's Ekadashi. You have to just avoid grains. Don't eat grains, that's all. And just survive on the fruits, vegetables, milk, water, juices, and all. And on Ekadashi day, every Ekadashi, you can try to chant 16 rounds. It will be very nice. You will advance in spiritual life very fast. It is said, Acharyas, Chaitanya Mahaprabhu has requested, and all the Acharyas, they have requested that when we do vrata on these days like Janmashtami, Radhastami,
Ram Navami, Narsimha Chaturdasi, Ekadashi, all these days. Why these days come to? So that we can observe fasting, vrata, and involve in bhakti, worshiping Krishna more and more, and advance quickly in spiritual life. So that's the benefit which we can derive from all these days which come, like Janmashtami is going to come, Radhashtami will come, Balram Jayanti. So many auspicious days they come to give us the offer. Just like in malls, they have 4 months sale, free sale means discounted sale, bumper dhamaka. 50% there will be sale, 60% discount. So you go that time. Many people they rush to the mall and they purchase many garments. So similarly, these auspicious days are like 50% discount. You will get the same thing on 50% discount. So big billion sale होता है ना जैसे malls में, वैसे big billion sales are like these days, Ekadashi days and all other days. So you all can observe these days very nicely and advance in spiritual life. ओके सो एकादशी पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ग्रेन्स नहीं खाना है, एंड अगर हम लोग ग्रेन खाते हैं तो इट इज वेरी वेरी सिंफुल. Yesterday I discussed that it is more sinful than eating non-veg also, eating meat, if you are eating grains on the Ekadashi day. So we should not eat grains on the Ekadashi. Unfortunately many people don't know, but still एकादशी का बहुत बड़ा क्रेज है. बहुत लोग जानते हैं एकादशी करते हैं, but still today's youth, today's generation, Gen Z, they don't have the understanding about Ekadashi and all. So at least you all start observing Ekadashi. It will have a great impact on your life. You will see that your life is becoming very blissful, very happy you will be, because by observing these days the vrata, your sinful reaction goes away, and we suffer because of sinful reaction. So when you observe vrata on Ekadashi or these days Janmashtami, Radhashtami, so all your sinful reactions are going away and you will not suffer in your life. This is the advantage why we observe fasting. Okay. And ऐसा नहीं कि फास्टिंग करके सो रहे हैं, ये भी नहीं करना है. व्रत कर रहे हैं so that we can get time more and involve into chanting, reading, all these activities. ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग निर्जला करते हैं और सोते, तो वो निर्जल का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. ठीक है, इंपॉर्टेंस है, बट इससे अच्छा तो आप पानी पी के नाम जप ज्यादा करिए. दैट विल बी मोर बेटर देन you in the name of observing Nirzala Ekadasi you are just sleeping. No, that we should not do. If you are feeling thirsty, you take water but chant more. Therefore we do vrata. Vrat means आप व्रत लीजिए भक्ति में आगे बढ़ने का, इसलिए व्रत करते हैं हम लोग. तो ये अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग है. बट अनफॉर्चुनेटली पीपल ऑब्जर्व एनी व्रत बट they will not do anything. They will just lie down inactive. And okay, so this is the understanding of vrata and Ekadashi. So very nice to see all of you, that many of you are, you have chanted more than 16 rounds, and please continue this, and on every Ekadashi you can continue this. Okay, so any question to what we have discussed till now? We have completed 5th chapter. Today I'm going to chapter. So any of you have any doubt about whatever we have discussed? Kshitij, you had doubt yesterday? Kshitij, you were asking something yesterday. So can you speak so that everyone can hear? लाइब्रेरी में है. ओके, सो क्षितिज का कल एक क्वेश्चन था कि प्रभु आपने बोला कि डेथ इज एग्जाम एंड वी हैव टू पास दैट एग्जाम, एंड वन क्वेश्चन विल कम, दैट इज
at the time of death whether you remembered Krishna or not. And there will be two options only, yes or no. If you say yes, then your life is successful. If you say no, then you are caught up in this cycle of birth and death. But Prabhu, if it is so that chanting Hare Krishna at the time of death, remembering Krishna, only at the time of death I have to remember Krishna, and by that I will go back to Krishna. So whole life I will be engaged in sinful activity or sense gratification at the time of death, because I know I'm going to die. So I'll chant Hare Krishna, I remember Krishna, and I go back to Krishna. So this is his question. And another question is, many times we hear that by seeing Lord in the Ratha, like abhi Jagannath Puri mein Rath Yatra hone wala, 7 तारीख को रथ यात्रा हुआ, 7 जुलाई, very few days, um, only 20 days are remaining, 19 days for gorgeous Ratha of Jagannath, Baladev, Subhadra Maya in Jagannath Puri. There will be huge Rath celebration, procession. Lakhs and lakhs of people, they go to Jagannath Puri to attend that Ratha. They pull the ropes of the Lord. And it is said that Ratham cha Vamanyam Dristva Punarjanmana Vidyate. If you see the Lord on the Ratha, then you will not have next birth again in this material world. Means you're liberated. So that means many people, lakhs and lakhs of people are going and pulling the chariot, seeing the Lord. So they will not take birth again. So once they have pulled, now they are going back to Godhead. Liberation is fixed. Now they can continue their sinful activity because it is the scriptural injunction. रथे च वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते. सो बहुत अच्छा क्वेश्चन इनका है कि बहुत सारे, जैसे एकादशी का आया, एकादशी आप अगर व्रत करते हैं तो आप बहुत सारे 1000 अश्वमेध यज्ञ बराबर आपको पुण्य मिलता है एक एकादशी करने से, इतना पुण्य मिलता है। और आप जो है भगवान के धाम चले जाते हैं एकादशी व्रत करने से। सो कोई अगर एकादशी व्रत करे और नाम जप नहीं करे, कुछ नहीं करे, और अपना अदर डेज में मीट ईटिंग, ऑल अदर काइंड्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज ही इज डूइंग, बट ऑन एकादशी डे ही विल जस्ट ऑब्जर्व स्ट्रिक्टली, और वो जो है मुक्त हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आते हैं। जैसे कोई टेम्पल में डोनेशन देता है तो वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन में डोनेशन देता है तो भी जो है वो लिबरेट हो जाता है। सो लाइक दिस देयर आर मेनी इंस्ट्रक्शंस, सो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, करेक्ट? सो एनीबडी वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन? अगर आपको पता है, किसी को पता है इसका करेक्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मरने वाले हैं, मुझे पता है, मैं भगवान को याद कर लूंगा, मर जाऊंगा और मैं भगवान धाम चला जाऊंगा। तो कैसे इसको समझे, कोई बताना चाहेगा? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर हिज अंडरस्टैंडिंग? भव्य, हिमांशु, so many are writing in chat box. हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ कुछ लोग हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है। हो ही नहीं सकता बिना प्रैक्टिस के, याद कर ले। तो श्रेया बोल रहे हैं कि प्रभु इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर कृष्णा अगर हमने पूरे लाइफ प्रैक्टिस नहीं किया है। यस बोल रहे हैं 8.6 में कृष्णा बोलते हैं कि at the time of death whatever is the mind state of mind, that state will achieve without fail. So कृष्णा भगवद गीता में बोलते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति यन्ते कलेवरम तम ऐति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। मरते समय जो हमारा मेंटल स्टेट होता है, हम नेक्स्ट लाइफ में वैसा ही बन जाते हैं। अगर आपका मेंटल स्टेट है, आप इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहे हैं, आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं, आप कुछ भी सोच रहे हैं, तो आपको वैसा बॉडी मिल जाता है। सो एनीवे, कोई बोलना चाहेगा कुछ चैट बॉक्स में? तो ठीक है। हिमांशु, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु, जैसे अजामिला का स्टोरी था, उससे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर वो भाव डेवलप कर पाए तो वो तो भगवान के नाम को आप तो फेवर कर रहे हो गजामिल पूरे लाइफ सिंफुल एक्टिविटी किया और मरते समय नारायण बोल दिया और वो उसका काम हो गया। तो कैसे समझे? कोई और बताना चाहेगा कुछ प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग? आप लोग इतने दिनों से क्लास अटेंड कर रहे हो।
कुछ अंडरस्टैंडिंग तो हुई होगी, क्योंकि लाइफ का गोल है मरते समय भगवान को याद करना, बस यही गोल है। मनुष्य जीवन बना है so that in this life when we are going to die we remember Krishna and go back to Krishna. That's the purpose of life and life is successful. It is said ante narayana smriti, मरते समय नारायण को याद करना है, बस आपका जीवन सफल, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर हो गए। तो बस नारायण को याद करना है, बस बहुत सिंपल है, तो मरते समय याद कर लूंगा। बट इज इट सो एज सिंपल एज वी आर डिस्कसिंग हियर कि याद कर लेंगे? सो लेट मी एक्सप्लेन। वो एक हाँ, और अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि जैसे हम लोग ज्यादातर टाइम इग्नोरेंस में रहते हैं, इस वजह से भगवान को याद करना थोड़ा मतलब उस टाइम पे मुश्किल हो सकता है। सो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता ही होगा, बट आप लोग बोल नहीं रहे। एनीवे लेट मी स्पीक। तो पीयूष ने सही बोला। सो देयर इज वन डिवोटी कॉल्ड, ही इज आलवार इन साउथ इंडिया। जैसे नॉर्थ इंडिया हम लोग गोस्वामी बोलते हैं, वैसे ही साउथ इंडिया में देयर हैव बीन मेनी डिवोटीज, वेरी स्टालवर्ड ग्रेट डिवोटीज, they are called alvars. In Tamil, alvar means one who is drowned in the ocean of love of God. So he is called alvar, means he is completely absorbed in the devotion to Krishna. So there have been 12 alvars in South India. This is not millions of years before. This is about 1000 or 2000 years before. This is the incidence. During the time of Ramanujacharya, Sankaracharya, and their times, during their time, these alvars had appeared, and one of the alvar is Kulashekar. So he says that there is beautiful verse which comes, he is sharing his understanding, his reflection that, oh my Lord, now I am healthy and I am in very good consciousness. So please bless me so that I can die now. अभी मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं हेल्दी हूँ। अगर मुझे अभी आप अगर ब्लेस कर दें दैट आई डाई नाउ ओनली, तो मैं आपको याद कर पाऊंगा। आई कैन रिमेम्बर यू एट दिस टाइम, क्योंकि मेरा माइंड बहुत अच्छा है। आई एम कॉन्शियस ऑफ यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू। सो प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन डाई नाउ। अदरवाइज इफ आई एम ओल्ड देन व्हाट विल हैपन? कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। वो बोल रहे हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, सो कफ पित्त वायु जो हमारे बॉडी में होती है वो डिसबैलेंस हो जाएगी, एंड देयर विल बी सो मच ऑफ पेन इन माय बॉडी, एंड इन माय कंठा देयर विल बी अवरुद्धा, मींस कंठ अवरुद्ध हो जाता है बुढ़ापे में, बोल नहीं पाते, कफ कफ जम जाता है, सांस फूलने लगती है। आप लोग अपने घरों में देखे होंगे दादा दादी, वो हमेशा हांफते रहते हैं, दुख बहुत तकलीफ रहता है। कफ पित्त वायु जो है डिसबैलेंस हो जाता है, वायु बढ़ जाती है इसलिए जॉइंट्स में पेन होता है, और कफ गले में जम जाता है इसलिए बोल नहीं पाते हैं। हार्ट में कफ जम जाता है और हार्ट बीट बढ़ जाता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये डिवोटी बोल रहे हैं कि अभी मैं स्वस्थ हूँ, अभी अगर मेरा मृत्यु आ जाए तो मैं आपको याद कर पाऊंगा, और मैं आपको याद करूंगा तो आपके धाम आ जाऊंगा। लेकिन अगर मरते समय बुढ़ापा आ गया या मैं बीमार हूं तब मेरी मौत आएगी, तो मैं तो उस समय स्टेट में ही नहीं हूं कि मैं आपको याद कर पाऊं, बिकॉज आई एम सफरिंग सो मच। माई कॉन्शियसनेस विल बी, मैं इस सफरिंग कैसे बाहर आऊं? सो कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, जब मेरे कंठ में अवरुद्ध, मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया है, तो मैं स्मरणम आपको कैसे याद कर पाऊंगा? कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विशतु मानस राजहंसम प्राण प्रयास समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। ये श्लोक बोलते हो कि now my mind is completely absorbed in you, so please bless me
so that I can die now. So ऐसे devotees क्यों pray कर रहे हैं? There are many devotees, they pray like that. आचार्य हमारे गोस्वामी pray करते हैं कि in fact devotees wait for the death. But for the devotees, it is most awaiting time, which is a devotee is waiting for that. When the time will come, when I leave this material world, this nasty, ये गंदा संसार, ये दुखों का घर, ये दुखालय, ये दुनिया जो दुखों घर, इसको छोड़ के कब मैं भगवान के धाम चला जाऊं, भगवान को याद करते हुए. और भक्त प्रे करता है कि मैं जब भगवान को याद कर रहा हूं, मैं नाम जप कर रहा हूं, तब मेरा डेथ हो. सो जब अगर हम पूरे लाइफ प्रैक्टिस किए हैं, when we have chanted हरे कृष्ण महामंत्र always, हम हमेशा जप कर रहे हैं, तभी हम भगवान को मरते समय याद कर पाएंगे. अदरवाइज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमारा माइंड इतना एब्जॉर्ब अगर है मटेरियल चीजों में, पूरा लाइफ हमने मटेरियल एक्टिविटीज किया है, तो मरते समय हमारा मेंटल स्टेट वही रहेगा. आप देखें अपने घरों में लोग मरते समय किसको याद करते हैं? बेटे को बुला दो, उसको बुला दो, उसको मैं देखना चाहती हूँ, देखना चाहता हूँ. सो वो इसी चीजों में वो फंसा रहता है, प्रॉपर्टी को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर, उसका का चेतना मटीरियलिस्टिक ही रहता है. तो भगवान को तो सोचने की दूर की बात है. और इंटेलिजेंस देने वाला कौन है? कृष्णा. इन 15th चैप्टर कृष्णा सेज आई गिव यू द इंटेलिजेंस. सो अगर आपने पूरे लाइफ भगवान को याद नहीं किया है, चैंट नहीं किया, सो मरते समय गारंटी नहीं है. it is Krishna who is going to give you intelligence. So if you have whole life done sense gratification, sinful activity, so you cannot remember Krishna. And in 7th chapter we'll discuss verse number 24. आप लोग खोलिए, उसको देखिए. उसमें कृष्णा बोलते हैं, येषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्वो मोह निर्मुक्ता भजन्ते इमाम दृढ़व्रता. जो सारे पापों से मुक्त हो गया है, वही मेरा नाम जप कर सकता है. आप देखिए ना, कितने लोगों को हम प्रीच करते हैं, बोलते हैं चैंट करो, चैंट करो, बट उनके मुंह से हरे कृष्णा निकलता ही नहीं है. क्यों? बिकॉज दे आर वेरी सिंफुल. So more you do sin, the name of the Lord will not come only from your mouth. What will come? All these sinful words will come from your mouth, but the word Krishna or Ram or the Lord's name will not come from your mouth, because the sin will overpower your consciousness. So therefore Krishna has said in 7th chapter verse number 24, if you have done sinful activity, you cannot cheat Krishna that पूरे life sinful activity करेंगे, मरते समय याद कर लेंगे. Not possible, क्योंकि इंटेलिजेंस भगवान देने वाले हैं, और मरते समय अगर आपने पूरे लाइफ याद नहीं किया भगवान को, तो मरते समय भगवान आपको इंटेलिजेंस नहीं देंगे. दूसरी चीज, अगर पूरे लाइफ आपने सिन किया है, तो अगर कोई सिंफुल पर्सन है, उसके मुंह से भगवान का नाम निकलेगा ही नहीं. तीसरी चीज, अगर हम भक्ति नहीं करते ना, तो क्या करते हैं? अधर्म करते हैं. तो अधर्म जब आप करते हैं, बहुत सारी चीजों से अटैच हो जाते हैं, मटेरियल चीजों से. यू गेट अटैच टू सो मेनी थिंग्स. सो मरते समय हमें क्या याद आएगा? जिससे हम बहुत अटैच हैं, वही याद आता है. आप देखे होंगे, आप रियलाइज भी किए होंगे, कभी कभी जब कुछ प्रॉब्लम आता है हमारे लाइफ में, तो तुरंत हमारे मुंह से क्या निकलता है? जिससे हम बहुत अटैच हैं. मम्मी याद आती है, पापा याद आते हैं, या कुछ भी याद आता है ऐसे ही. सो दीज आर मिड टर्म्स. जैसे होता है ना, हमारे कॉलेज में मिड टर्म्स होते हैं. अगर आप मिड टर्म में फेल हो रहे हैं, तो देयर इज नो गारंटी दैट यू विल पास इन एंड टर्म, राइट? सो अगर ये सब मिड टर्म्स हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम जब आ रहे हैं और आप भगवान को याद नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप मिड टर्म में फेल हो रहे हैं. सो आप एंड टर्म जो डेथ के टाइम पे होगा, वो तो आप पक्का फेल होने वाले हैं. सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग. तो अगर आप मिड टर्म में फेल हो रहे हैं, तो आप एंड टर्म में पास नहीं हो सकते. आप मिड टर्म में 0 नंबर ले आए, सेकंड मिड टर्म में 0 नंबर ले आए, अब आप एंड टर्म में आप चाह रहे हैं कि मैं पास हो जाऊं, तो वेरी लीस्ट चांस. क्योंकि इसका मतलब यही है कि आपको पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं, इसलिए तो आप फेल हो रहे हैं ना. 0 नंबर आ रहे हैं आपके, तो एंड टर्म में क्या गारंटी आप कि पूरा नंबर ले आएंगे? यस, ले आ सकते हैं, अगर आपने बहुत रिगरस प्रिपरेशन कर लिया तो. उसी तरीके से हम लोग अभी, जो हमारा मिड टर्म होता है, मिड टर्म क्या होता है? छोटे छोटे प्रॉब्लम जो लाइफ में आते हैं, नंबर कम आएगा एग्जाम में, तो हमें क्या है? भगवान याद आते हैं? नहीं याद आते. कुछ प्रॉब्लम आ गया लाइफ में, तो भगवान नहीं याद आते. हमें कुछ और प्रॉब्लम याद आता है. प्रॉब्लम, वी बिकम प्रॉब्लम कॉन्शियस, नॉट कृष्णा कॉन्शियस. व्हेन प्रॉब्लम कम्स, वी थिंक ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट कृष्णा. आप देखो, रियलाइज करो.
लास्ट टाइम आपको कौन सा प्रॉब्लम आया था? हेडेक जब होता है तो क्या हम कृष्णा को याद कर पाते? नहीं। एक छोटा सा हेडेक आपको कृष्णा को बुला देता है। कहीं चोट लग गई हाथ में, कुछ हो जाता, नेक पेन होता है, आप भागते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास, कुछ भी बैक पेन होता है, थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है बॉडी में, तभी हमें भगवान नहीं याद आते। हम इधर-उधर जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं ट्रीट करने के लिए अपने आप। सोचो मरते समय इतना पेन होता है। इट इज सेड 40,000 स्कॉर्पियंस व्हेन बाइट एट वन शॉट, दैट मच पेन वन फील टाइम ऑफ डेथ। कितना पेन होता है? 40,000 हजारों भिक्षु एक साथ जब आपको काटे, जितना पेन होगा उतना पेन मरते समय होता है शरीर में। वो तो केवल जो आत्मा छोड़ रही शरीर उसको ही फील होता है, बाकी लोग तो देखते हैं, उनको लगता है अरे तो जा रहे हैं जा रहे हैं। आप नहीं समझ पाएंगे। ये शास्त्र गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हजारों स्कॉर्पियन जैसा काटते हैं तो जैसा पेन होता है उतना पेन होता है मरते समय। हमें जब थोड़ा सा हेडेक होता है उसमें भगवान को नहीं याद कर पाते, हम सो जाते हैं, हम चैंटिंग नहीं करते हैं, हमने 4 माला 8 माला 16 माला कमिटमेंट लिया वही नहीं कर पाते। तो अगर मिड टर्म्स में फेल हो रहे हैं तो वो एंड टर्म कितना टफ होने वाला है। इतने हजारों बिच्छू आपको काटेंगे, बहुत पेनफुल होता है मरना। वो तो हमें पता नहीं है ना, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया हम, लेकिन एक्सपीरियंस एक बार करेंगे, वो एक ही बार होगा। दूसरा जो मरता है वो आपको एक्सपीरियंस बता नहीं सकता। ये तो ऐसे ही मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसे, जो टेस्ट किया वो गया। तो डेथ भी ऐसे ही है, एक्सपीरियंस हम लोग करेंगे लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत हॉरिबल है, शास्त्र बताते हैं। तो हमें शास्त्रों को समझ के अगर हम लाइफ जिएंगे तो हम सेफ साइड में रहेंगे। अगर हम अपने अपने हिसाब से रेकलेसली जिएंगे तो वी आर गोइंग टू सफर वेरी हॉरिबली, बिकॉज डेथ इज गोइंग टू कम एंड वी हैव टू फेस दैट एग्जाम। तो अगर हम लोग अभी मिड टर्म्स में पास हो रहे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं, मिड टर्म मतलब जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे लाइफ में उसमें हम भगवान को याद कर पा रहे हैं, तो हम ये गारंटी रहेगा कि मतलब ये पॉसिबिलिटी है, गारंटी तो नहीं कह सकते, पॉसिबिलिटी है कि एट द टाइम ऑफ डेथ वी कैन रिमेम्बर कृष्ण, क्योंकि डेथ इज वेरी वेरी हॉरिबल। और ये तो तब उस डेथ की बात हो रही जब आपको पता है आप मरने वाले हैं। व्हाट अबाउट दैट डेथ व्हेन यू डोंट नो, ओनली यू डाई, लाइक एक्सीडेंट्स हैपन, राइट? देयर आर मेनी पीपल दे डाई इन द जिम ओनली नाउडेज, जिम करते करते मर गए। So nowadays, especially death is very horrible. They are not dying their natural death. They are dying like dogs. कुत्ते की मौत मर रहे हैं आजकल तो लोग, चलते हुए एक्सीडेंट हो जा रहा है, पता नहीं कैसे कैसे मर जाते हैं, हार्ट अटैक से मर जाते हैं। तो आपको यू नो डोंट नो, यू नेवर नो दैट यू आर गोइंग टू डाई। सो देन हाउ यू विल रिमेम्बर कृष्णा? नो चांस। Correct? So our situation is very horrible, very dangerous. So therefore हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा कीर्तन करते रहो 24 घंटे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So this human life is a preparation. So we have to prepare ourselves so that हम end term exam जो final exam होगा उसको पास कर पाएं। वो एग्जाम इतना आसान नहीं है, बहुत हॉरिबल है एग्जाम वो, बहुत बहुत डिफिकल्ट हो, रूह कांप जाता है, रूह बहुत पेनफुल होता है। ये ह्यूमन लाइफ प्रिपरेशन है, तो हम लोग प्रिपेयर करना है, तभी हम प्रिपेयर हम वो एग्जाम पास कर पाएंगे जब पूरे लाइफ हमने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस स्टेज पे पहुंचना है हमें। We have to reach on this stage that continuously 24 hours we are chanting Hare Krishna. So किसी ने पूछा प्रभुपाद स्लीपिंग में कैसे हम भगवान को याद करेंगे? So प्रभुपाद ने बोला if you are when you are awake you are nicely engaged in chanting the name of Krishna, serving Krishna, then in the night also when you sleep you will have dream about Krishna. So you are remembering Krishna even in the dream. So like this you are remembering Krishna 24 hours. So we have to mold our life in such a way. That's what in 8th chapter हम लोग डिस्कस करें। कृष्णा बोलते हैं कि you do your duty remembering me. So ड्यूटी करना है कृष्णा को याद करते हुए। So ये एक आर्ट है, ये सीखना हमें, और ये ह्यूमन लाइफ इसीलिए बना है, इसी आर्ट को सीखने के लिए, और कोई आर्ट सीखने के लिए नहीं बना हमारा ह्यूमन लाइफ। गिटार सीख रहे हैं, ये सीख रहे हो, वो सब ठीक है, टाइम आप अपना टाइम फिलर के जैसे करो, कोई दिक्कत नहीं, बट
मेन चीज जो है वो क्या है, इसको सीखना, ये आर्ट हमें सीखना है। क्या कि कैसे अपनी ड्यूटीज करते समय भगवान को याद करते रहें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइफ इज प्रिपरेशन फॉर दैट एग्जाम विच इज कम इन आवर लाइफ। सो हमें प्रिपेयर करना है। और जो हम लोग ये सुनते हैं इंस्ट्रक्शन की, एक बार जैसे हरे कृष्णा मंत्र का, एक बार हरे कृष्णा बोल दिए आप मुक्त हो गए, आप योर लाइफ इज सक्सेसफुल। और बहुत ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आते हैं। तो व्हाट अबाउट दैट, एक्चुअली में उसका क्या है, द अंडरस्टैंडिंग है जैसे रथ यात्रा का है, आपने देख लिया तो आप मुक्त हो जाएंगे, मुक्त तो हो जाएंगे, लेकिन देयर आर 5 काइंड्स ऑफ लिबरेशन। कितने लिबरेशन है? 5 तरीके के लिबरेशन है। बट द लिबरेशन विच चैतन्य महाप्रभु इज ऑफरिंग is the highest liberation, that is going back to Krishna and enjoying with Krishna, playing with Krishna, living with Krishna. That is only possible when we remember Krishna always and think of Krishna at the time of death. Otherwise हमने जगन्नाथपुरी में जाके भगवान को देख लिया, दर्शन कर लिया, हम सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, हमने जो पाप किए अभी तक सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी टेंडेंसी जो है पाप करने की वो अभी भी है। और वो टेंडेंसी जाती है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र रिगरसली करते हैं। तो दर्शन करके पाप तो खत्म हो गए, आप मुक्त हो जाए। अगर उस समय मरे या तो आप मुक्त हो जाएंगे। आपने दर्शन किया, यू डाई, सो यू विल डेफिनेटली गो, you will be liberated. But liberation is also 5 kinds. You may get impersonal liberation. Impersonal liberation means ब्रह्म ज्योति में चले गए आप, from but there also, from there also you will fall down. क्योंकि भगवान के धाम जाके आप करोगे क्या, अगर यहाँ आपने किया है, भगवान से प्रेम डेवलप नहीं किया है, तो वहां जाके फिर से आप भगवान को देखोगे तो आपके अंदर प्रेम तो है नहीं। सो व्हाट यू विल डू देयर, अगेन यू विल कम बैक। सो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस आर देयर कि दर्शन कर लिया, एक बार नाम जप कर लिया तो आप सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। यस, इट इज फैक्ट, लेकिन आपकी टेंडेंसी नहीं खत्म हुई है। जैसे होता है ना, हम लोग जगन्नाथपुरी में दर्शन करके आते हैं या नाम जप करते हैं फिर भी पाप करते हैं, क्योंकि वो टेंडेंसी इज वेरी डीप रूटेड। सो इस टेंडेंसी को हमको खत्म करना है। और ये टेंडेंसी खत्म होता है बाई रिगरसली इन्वॉल्विंग इनटू डिवोशनल सर्विस। और जैसे मैंने बताया देयर आर 5 काइंड्स ऑफ लिबरेशन। सो हो सकता है आपको इम्पर्सनल लिबरेशन मिल जाए। अगर आप भक्त नहीं है और आपने भगवान को, जैसे जैसे कुरुक्षेत्र में यही हुआ था। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जिसने भी भगवान कृष्ण को देखते हुए शरीर छोड़ा, he got liberated. All those people who left, who were killed, and by seeing Krishna they left the body, they all got liberated. But now their liberation depends on their attraction for Krishna. If they are favorably disposed to Krishna, अगर उनको भगवान से प्रेम था, भगवान से लगाव था, तो भगवान के धाम जाएंगे। और जो एनवियस थे और वो भगवान कृष्ण को देखते हुए शरीर छोड़ा, मरे, तो वो भी लिबरेट होंगे। लेकिन वो कैसे लिबरेट होंगे? जैसे कंस मुक्त हो गया था, कंस मुक्त हो गया, लिबरेट हो गया, लेकिन कंस को वो वाला लिबरेशन नहीं मिला जो भक्त को मिलता है। भक्त को लिबरेशन, हाईएस्ट लिबरेशन मिलता है जाके भगवान साथ लीलाएं करता है। जो कंस वगैरह है, ये सब जरासन, ये सब तो इम्पर्सनल लिबरेशन मिलता है, ये जाते ब्रह्म ज्योति में मर्ज हो जाते। सो देयरफॉर this liberation is not our desire. Our desire is to get that liberation. और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जैसे अगर आपको बोला जाए कि आप ये काम करिए, आपको 1,00,000 रुपए मिलेगा, और जितनी बार करेंगे उतनी बार 1,00,000 रुपए मिलेगा, तो आप क्या एक बार करके रह जाएंगे? 1,00,000 तो मिल गया, आप क्या करें? एक बार कर लिया, 1,00,000 मिल गए, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मुझे 1,00,000 की जरूरत थी, मैंने कर लिया और मुझे 1,00,000 रुपए मिल गए, चलो ठीक है। तो क्या आप 1,00,000 लेके रह जाएंगे? बट यू हैव अपॉर्चुनिटी, यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू अर्न मिलियंस, है ना? तो आप एक बार में ही नहीं रुकेंगे, आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे और पैसा, और बार बार उसको एक्टिविटी करेंगे और 1,00,000 रुपए लेते जाएंगे, बिकॉज योर ग्रीड विल डेवलप। अरे यार, एक बार किया, 1,00,000 मिल गया, फिर से आप करेंगे दोबारा। जैसे गैम्बलिंग होता है ना, गैम्बलिंग में
लोग खेलते हैं गैम्बलिंग में, ये बिटकॉइन और ये ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, ये क्या है? इसमें आप 10,000 देते हैं तो आपको 20,000 मिलता है, आप 40,000 देते हैं 1 लाख मिलता है। तो आप देखते हैं बैठे बैठे आपको मिल रहा है यार, तो आप स्टॉप नहीं होने वाले, आपकी ग्रिड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो उसी तरीके से अगर इंस्ट्रक्शन आया कि आप भगवान को देखने से आप मुक्त हो जाएंगे, मतलब सारे प्रॉब्लम से फ्री हो जाएंगे, सो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति सोचेगा यार देखने से इतना बेनिफिट है, तो अगर मैं डेली हमेशा भगवान के नाम जप करूं, हमेशा भगवान का दर्शन करूं, तो क्या बेनिफिट मिल सकता है हमें? करेक्ट। सो डिवोटी ये सोचता है, ये अंडरस्टैंड करता है कि यार एक बार भगवान का दर्शन करने से इतना बेनिफिट, फिर तो हमेशा दर्शन करना चाहिए, तो कितना बेनिफिट मिल जाएगा, अनलिमिटेड बेनिफिट। सो डिवोटीज माइंडसेट इज दैट। डिवोटी ये नहीं सोचता अरे यार एक बार तो हो गया ना, हमारा काम हो गया, अब तो मुक्त हो गए, चलो, नहीं, ऐसे नहीं। जैसे हम लोग बिटकॉइन खेलते हैं गैम्बलिंग में, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, है ना, स्टॉक मार्केट में, तो ऐसा नहीं कि एक बार इन्वेस्ट किया बस उसमें देख रहे हैं पैसा बढ़ गया, अरे मैंने 1,000 इन्वेस्ट किया, 10,000 हो गया, तो और इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसकी करेंसी बढ़ती जा रही। द सेम वे डिवोटी इज ऑल्सो ग्रीडी। जब एक बार हरे कृष्णा मंत्र जप करने से इतना बेनिफिट हो गया कि करोड़ों समेत यज्ञ के बराबर आपको फल मिल गया, तो आप एक बार हरे कृष्णा बोल के नहीं रुकेंगे। आप सोचेंगे यार अगर एक जप करने से इतना बेनिफिट, सो अगर मैं हमेशा जप करूं तो कितना बेनिफिट। So he is greedy. So therefore it is said devotee is always greedy. He therefore goes on chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. He never stops. तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमें बताती है कि हमें हमेशा जप करते रहना चाहिए। इससे क्या, आप भगवान जैसे एक लड़की लड़का प्रेम करते हैं, तो जब उनके अंदर प्रेम डेवलप हुआ, सो बॉय एंड गर्ल दे विल बी ऑलवेज ईगर एंग्शियस टू मीट अगेन एंड अगेन। ऐसा नहीं एक बार मिल लिए, हाँ ठीक है एक बार मिल लिए ना, चलो अब अपने घर, मैं अपने घर, ऐसा होता है क्या? नहीं, बिकॉज दे हैव लव, सो दे विल अगेन मीट, और एक बार जब मिलेंगे तो इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, सो दे विल थिंक ऑफ मीटिंग अनदर अगेन। So like this, they will their intensity will develop more and more, and they will desire to meet again and again and again. So this is what we see in this material world. यहाँ भौतिक जगत में जो होता है, बट एनीवे यहाँ पर बैफल हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ईगोइस्टिक है ना, कंटामिनेशन है यहाँ पर लव में। बट कृष्णा के और डिवोटी के बीच जो लव है उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं, वो कभी ब्रेक नहीं होता। एकमात्र लव, एकमात्र प्रेम जो कभी ब्रेक नहीं होता, बढ़ता जाता है, वो कौन है? कृष्ण और हमारा जो प्रेम है, हमारा जब कृष्ण से प्रेम है, ये ऐसा प्रेम है कभी नहीं टूटेगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। सो इसलिए डिवोटी हमेशा, क्योंकि कृष्णा इज हिज बिलवेड लॉर्ड, सो डिवोटी ऑलवेज डिजायर्स, ही इज ईगर टू चैंट मोर एंड मोर। अपने जैसे एक लड़की लड़का लड़का अपनी अपनी बिलवेड है, उसके नाम, उसके फॉर्म, उसके रूप, उसको उसको देखने में उसको मजा आता है, वो देखता रहता है, he feels very nice, lot of pleasure he gets. In the same way, devotee also, by seeing the Lord, he feels pleasure. By chanting the name of the Lord, he feels pleasure. So this is the mindset of devotee. Devotee is not after liberation कि मैं मुक्त हो गया, नहीं, devotee is after प्रेम। तो इसलिए पंचम पुरुषार्थ की अंडरस्टैंडिंग आती है। शास्त्र बताते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो हमारा जो पर्पज है मोक्ष है, लेकिन भक्त चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं पांचवा एक और है, वो क्या है? प्रेम। मीन्स धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम, प्रेम पुमार्थो महान। सो जो कृष्ण प्रेम है ये सबसे महान है। सो भक्त जो है मुक्ति के पीछे नहीं है, भक्त कृष्ण को प्रेम करना चाहता है बस। बिकॉज इन लविंग कृष्णा देयर इज सो मच एंजॉयमेंट। इसीलिए आप देखो डिवोटीज दे डोंट वांट लिबरेशन। गोपीज का आप देखो, गोपीज दे डोंट, जब वो नारद मुनि का पास टाइम आया था, कृष्णा हैड हेडेक इन द्वारिका, जब कृष्णा को हेडेक था द्वारिका में, सो नारद मुनि को कृष्णा बुलाते हैं और बोलते हैं कि रेमेडी ऑफ क्योरिंग माई हेडेक, अगर रेमेडी क्या है, अगर मेरे भक्त अपने चरणों की धूल मुझे दें और मेरे सर पे लगाएं तो मेरा हेडेक खत्म हो जाएगा। सो नारद मुनि जाते हैं, सारे डिवोटी से मांगते हैं, द्वारिका के डिवोटी, सारे देवी देवता सारे डिवोटी से मांगते हैं, लेकिन सब मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि
जब नारद मुनि ने बोला कि आप जो है अपने चरणों की धूल दो, भगवान अपने सर पे लगाएं, उनका हेडेक खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने बोला अगर मैं अपने चरणों का धूल दूंगा, भगवान सर पे लगाएंगे तो मैं तो नरक जाऊंगा, दैट आई कैन नॉट डू। तो सबने निग्लेक्ट कर दिया। सो फिर नारद मुनि कृष्णा के पास गए और कृष्णा को बोले भगवान कोई दे ही नहीं रहा है, सब बोल रहे हैं मैं तो नरक जाऊंगा, मेरे चरणों की धूल भगवान अपने सर पे लगाएंगे, मैं नरक का भागी वो बनूंगा। सो सबने मना कर दिया। फिर कृष्णा बोलते हैं अब आप वृंदावन जाओ। सो नारद मुनि वृंदावन जाते हैं और गोपियों को बुला के बोलते हैं इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास एक न्यूज है तुम्हारे लिए। तो गोपियां पहले तो बड़ी एक्साइटेड थी, तो बोली व्हाट इज द न्यूज। सो बोलते हैं एक्चुअली कृष्णा इज हैविंग हेडेक। So Gopiyan, they became morose, they became so disturbed. Oh, Krishna is having headache. So गोपियों ने बोला कैसे सही करें फिर कृष्णा का हेडेक। So नारद मुनि ने बोला if I get the dust particle of your lotus feet and apply on the head of Krishna, then all the headache, all the problems of Krishna will be solved. So गोपियों ने बोला अच्छा। So गोपियां सबसे पहले भागती यमुना में और पैर धोकर आती हैं और अपने पैर से खूब सारे सैंड को वो लगाती हैं अपने पैर पे, और वो डस्ट को बोलती है नारद मुनि की ये ले जाओ, आप जल्दी ले जाओ और भगवान के सर पे लगाओ, माई कृष्णा शुड बी हैप्पी। सो नारद मुनि बोला रुको 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 1 मिनट, इसका सीवियरिटी जानते हो आप, ये डस्ट अगर कृष्णा सर पे लगाएंगे तो आप नरक जाओगे। तो गोपियां बोलती हैं एक साथ टू हेल विद हेल, मतलब वी आर रेडी टू गो टू हेल बट माई कृष्णा शुड बी हैप्पी। दैट वाज द मूड ऑफ गोपी, जस्ट सी। और नारद मुनि ने जब ये देखा तो नारद मुनि की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो नारद मुनि ने उस समय बोला आज मैंने देखा, मैंने केवल सुना था कि गोपियां सबसे बड़ी डिवोटी हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे जो परम भक्त हैं वो गोपियां हैं। क्योंकि उन्होंने अपना दुख, अपना तकलीफ, अपना सब कुछ छोड़ वो साइड कर दिया, उन्होंने नरक जाने के लिए रेडी हो लेकिन कृष्णा को खुश करना चाहती हो। सो ये भक्त जो है भगवान को ऐसा प्रेम करता है, उसको मुक्ति भी नहीं चाहिए, वो नरक जाने के लिए रेडी है, उसको कृष्णा चाहिए बस। बिकॉज रिमेम्बरिंग कृष्णा इज सो वंडरफुल, सो ब्यूटिफुल, सो चार्मिंग, सो प्लेजरेबल, थिंकिंग ऑफ कृष्णा। सो देयरफॉर गोपीज आर मैड आफ्टर कृष्णा। सो ये अंडरस्टैंडिंग हमको होना चाहिए। आप सब लोगों के माइंड में ये डाउट्स होगा, इसलिए मैंने आज डिस्कस किया इसको अच्छे से। तो जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था 5th चैप्टर, इसमें आया था कि सेंस ग्रेटिफिकेशन स्टार्ट होता है एंड हो जाता है और ये मिजरी देता है आपको, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान से प्रेम जो है ना वो कभी मिजरी नहीं देता। तो उसमें कल वाले श्लोक में आया था कि जो इंटेलिजेंट है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन वाले एंजॉयमेंट में नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा फिर वो, यहाँ जाएगा कृष्णा को प्रेम करने में। ही विल लव कृष्णा, ही विल dedicate his life for worshipping, loving Krishna, and he will derive pleasure from here. And he knows, because he knows that this pleasure is everlasting and it will go on increasing. It will never end. और जो इंद्रिय तृप्ति का प्लेजर हो एंड हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। जब आपकी डेथ होगी तो खत्म हो जाएगा, या उससे पहले ही डाइवोर्स हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे। सो इट इज बाउंड टू गेट सेपरेटेड और फिनिश्ड। लेकिन हमारा और कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, वो कभी नहीं खत्म होने वाला है। लाइफ आफ्टर लाइफ इट विल कंटिन्यू। सो दैट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवोटी। सो ये हम सब लोगों को समझना है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था, इसलिए ये हमने डिस्कस किया। टाइम ओवर हो गया है तो हम लोग क्लास को एंड करेंगे। आज का क्विज मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और एक चीज और, मैं आप लोगों को कल का जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स का रिजल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने सर्टिफिकेट्स बनाए हैं, सो ऑल ऑफ यू कैन नाउ सी योर रिजल्ट। जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स का रिजल्ट आया है टोटल, एक तो हमने रिटन लिया था, क्विज लिया था, और क्विज डेली होता है, क्विज का भी मार्क्स ऐड है, अटेंडेंस भी ऐड है, और जो ओरल टेस्ट हुआ, सो ऑल आर टेकन टुगेदर एंड वी हैव made a scorecard certificate for all of you. You all can see. I'm going to share it here. So this is your certificate, Bhagavad Gita online course scorecard, first 3 chapter. So like this,
इन एवरी 3 चैप्टर्स। अभी फर्स्ट 3 चैप्टर, अगले 3 चैप्टर्स का भी स्कोर कार्ड आएगा और आप लोगों को जो जो पार्टिसिपेट करेगा उसको ये मिलेगा सर्टिफिकेट। सो ये भव्य जैन का है। अटेंडेंस 82%, डेली सो अटेंडेंस का 10% वेटेज था, डेली क्विज का 15% वेटेज है, ओरल टेस्ट का 15%, फाइनल एग्जाम का 60% वेटेज है। और जो भव्य है उनका अटेंडेंस में जो इन्होंने स्कोर किया है 82%, डेली क्विज में 89, ओरल टेस्ट में 100% था, फाइनल एग्जाम 76। सो इनको जो एग्रीगेट स्कोर है इनका भव्य का 87.39। सो बिग राउंड ऑफ अपलॉड फॉर भव्य जैन, बिकॉज भव्य गॉट द फर्स्ट रैंक एंड ही हैज स्कोर्ड 87%। सो ये इनका स्कोर है। बाकी आप लोग भी देख लीजिए। सो भव्य जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, बहुत ही नया 6 महीने कांटेक्ट में आए, लेकिन जस्ट बिकॉज ही वाज रेगुलर कंसिस्टेंट सो ही कुड डू वंडर्स, ही कुड परफॉर्म सो वेल। तो आप लोग भी रेगुलर रहेंगे तो आप लोग भी परफॉर्म कर पाएंगे, दिस इज द ओनली सीक्रेट। अंश माहेश्वरी का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, अटेंडेंस भी कम है, डेली क्विज भी नहीं अच्छे से कर पाए हैं, फाइनल एग्जाम में भी ओरल टेस्ट नहीं दिया। सो 22.62% केवल आया है। अच्छे से परफॉर्म करो अंश, इस बार आपको अच्छा परफॉर्म करना है। हर्ष का भी ठीक ठाक रहा है बट ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, ओरल टेस्ट नहीं दिया, डेली में 62, अटेंडेंस 70, फाइनल 58, 51.16%। पीयूष का ठीक ठाक रहा है बट ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है जितना एक्सपेक्टेड था। अटेंडेंस बहुत अच्छा है, डेली क्विज में श्लोक नहीं बता, अच्छा नहीं रहा, श्लोक में भी पूरा नहीं बता पाए, फाइनल एग्जाम भी ठीक ठाक। सो 67% आया है पीयूष का। रतेंद्र का आया 55%, ओरल टेस्ट रतेंद्र ने नहीं दिया, नहीं तो और आ जाता। सो आप थोड़ा और अच्छे से परफॉर्म करें रतेंद्र। सुनिधि कुमारी 28%, वेरी पुअर, आपको अच्छा परफॉर्म करना है। आशीष कुमार 46%, आशीष थोड़ा अच्छा परफॉर्म करिए इस बार। इस टेस्ट में आप सब लोगों को बहुत अच्छा परफॉर्म करना। आई वांट ऑल ऑफ यू टू गेट 80% मोर देन। डिम्पल शेखावत 34%, अटेंडेंस तो बहुत अच्छा है, बाकी में आपका स्कोर डाउन है तो आप बाकियों में भी अच्छा करिए। पार्थ अटेंडेंस डेली क्विज में 100%, यहाँ पर ओरल टेस्ट में रह गए, इधर 69% पे अटक गए। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ये इंडिया की तरह है, सारे मैच हार के फाइनल हार गए, सारे मैच जीत के फाइनल हार गया ऑस्ट्रेलिया से। सो पार्थ इंडिया नहीं बनना, ऑस्ट्रेलिया बनना है। पार्थ बंसल 61%, थोड़ा आप भी अच्छा इंप्रूव करिए। सो ये जो लोगों ने रिटन टेस्ट दिया था उनका स्कोर कार्ड यहाँ पर सर्टिफिकेट है, आप लोगों को मेल कर दिया जाएगा, यू विल रिसीव दिस सर्टिफिकेट। और ये काम आएगा आपको वेन एवर यू हैव your CV, you are making your CV resume, you can attach this in your resume, it will add value। बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षय पात्रा हरे कृष्णा मोमेंट हमारा मंदिर का लोगो, आप इट इज वर्ल्ड ओवर नोन, आवर मोमेंट इज वर्ल्ड ओवर नोन। मे बी योर इंटरव्यूअर ही इज he everybody knows ISKCON, everybody knows Prabhupada, right? So if you have attached this certificate, so he will ask, अच्छा आप भगवद गीता अटेंड किए, अच्छा क्या समझा आपने? So he will, so your questions may get diverted from core to भगवद गीता, एंड आपने भगवद गीता अच्छे से डिस्कस अंडरस्टैंड किया, सो यू कैन एक्सप्लेन वेरी नाइसली and your interviewer may get impressed and he will give you green signal। many times it has happened, बहुत बार ये हुआ है कि स्टूडेंट्स दे शेयर देयर रियलाइजेशन कि प्रभु मैंने ये अपने सीवी में लगाया था भगवद गीता क्लास का मैंने और सर्टिफिकेट, तो उन्होंने भगवद गीता से पूछा और मैंने बताया, सो दे वर इम्प्रेस्ड और उन्होंने मेरा सिलेक्शन हो गया। बिकॉज आज इस्कॉन को कौन नहीं जानता, आज हरे कृष्ण महामंत्र कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो आप अगर अटैच करेंगे, देखो 90% लोग हैं जो कि भगवान पे बिलीव करते हैं। भगवद गीता आज इतना बड़ा ट्रेंड है, इवन विदेश में लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं। सो अगर आपने ये अटैच किया है, भगवद गीता की अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, तो वो लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे और इम्प्रेस हो जाएंगे अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते। सो देयरफॉर ऑल ऑफ यू प्लीज अटेंड दिस नेक्स्ट क्विज विच इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 6 चैप्टर। सो इसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है और देन ऑल ऑफ यू विल गेट सर्टिफिकेट। ओवरऑल सर्टिफिकेट भी मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट टू 18 चैप्टर, ये इंडिविजुअल चैप्टर वाइज फर्स्ट 3 चैप्टर एंड देन ओवरऑल भी सर्टिफिकेट मिलेगा। सो आप लोग
इसको अपने CV रिज्यूमे में भी लगा सकते हैं, इट विल हैव अ वर्थ। ओके, और अगर आपका स्कोर इतना है तो देख के फिर आप पहली बार लगा नहीं पाओगे। 22% अगर अंश जो है लगा दिए तो पहली बार लगाने का मन नहीं करेगा, और लगा दिए तो बोलेगा अरे ये सब जगह भगवद गीता क्लास में भी ऐसे इनसिंसियर रहा है, यहाँ भी इनसिंसियर, मेरी कंपनी में भी इनसिंसियर रहेगा, तो आपको निगलेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो ही विल गेट अमेज्ड, सो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, तो आप सब लोग जो है इस बार अच्छा परफॉर्म करिए और डेली क्विज अटेंड करिए और आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, सो नाउ विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। प्रभु एक क्वेश्चन है, हरे कृष्णा प्रभु।